તમારા બધા મને તો જોવા દેશ બનાવો યાર માનનીય નવા વરાયેલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મારા વર્ષો જૂના મિત્ર છે, સાથી છે. તેઓ શ્રી ધારાસભ્ય નહોતા, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા કે ઔડાના ચેરમેન હતા. ત્યારથી અમારો વર્ષો જૂનો પારિવારિક સંબંધ છે અને એમની સાથેના સંબંધોના જે જૂના અનેક સંભાળના એ અમારા છે. તેઓ શ્રી જ્યારે ધારાસભ્ય બન્યા ત્યારે એમની કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે પણ એમને મને નિમંત્રણ આપ્યું હતું ને એમનું ધારાસભ્ય કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન પણ મેં કરેલું. એમને ત્યાં સામાજિક પ્રસંગ હોય કે મારા ત્યાં સામાજિક પ્રસંગ હોય, અમારા બધા પારિવારિક સંબંધો છે. એટલે ગઈકાલે જ્યારે મુખ્યમંત્રી નિયુક્ત થયા ત્યાર પછી મારે મહેસાણામાં અગાઉથી નિશ્ચિત કાર્યક્રમ હતો, જેની છાપામાં જાહેર ખબરો આવી ગયેલી, મંડપો બંધાઈ ગયેલા, પત્રિકાઓ વહેંચાઈ ગયેલી. એટલે માનનીય ભૂપેન્દ્ર યાદવજી અમારા પ્રભારી શ્રીની રજા લઈ અને કમલમથી ભૂપેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપી શુભેચ્છા પાઠવી અમે બધા જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે હું ત્યાંથી મહેસાણા ગયેલો અને મહેસાણામાં પણ ખૂબ મોટો કાર્યક્રમ લગભગ 2000 નાગરિકોની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલો. ત્યાં પણ મેં સભાની શરૂઆતમાં જ ભૂપેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા એનો આપણને બધાને મહેસાણાના જનતાને આનંદ છે અને બધા આપણે એમને અભિનંદન આપીએ એમ કહીને લગભગ 1000 લોકોને સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન. In fact, people of Mehsana were also very happy to see me and also very happy with the new decision. ઉભા થઈ તાળીઓ વગાડી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. એટલે મારા ને એમના સંબંધો એ કે મુખ્યમંત્રી કે બીજા પ્રકારના નથી, પારિવારિક વર્ષો જૂના સ્નેહના સંબંધો છે અને એના નાતે જ સવારે મારા ત્યાં Me and Bhupendra Patel are family friends. We have known each other for several years. મુલાકાત માટે This is not a new friendship. In fact, Bhupendra Patel had said that he wanted to come and meet me at my house, and I am more than happy to receive him, and I have congratulated him to become the Chief Minister. સલાહ સૂચન હોય તો પણ જરૂર કહેશો અને મારી જવાબદારી પણ છે. In fact, Bhupendra Patel told me that if there was anything that he can do, and even I told him that if there was anything that I could do to make the transition of power easier, and if there was anything that he needed at all, I could be there to help. आप लोग ही सब ऐसा बड़ी बड़ी बातें रखते हो. जब नाम चलता था तो भी चला दिया, नहीं हुआ तो भी चला दिया. अब मिठू करावी અને એમને મેં શુભેચ્છા પાઠવી. कल जो आपका स्टेटमेंट आया था महेसाना में, उसमें साफ दिख रहा है कि आप नाराज हैं. बिल्कुल नहीं है, ये सब आप लोग बनाते हो और आप लोग ही सब ऐसा बड़ी बड़ी बातें रखते हो. जब नाम चलता था तो भी चला दिया, नहीं हुआ तो भी चला दिया. अब मंत्रिमंडल की बात करेंगे, मंत्री बनने के बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, ऐसी भी बात चलाएंगे. तो ये तो आपका व्यवसाय है, तो आप करते ही रहते हो. लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का संगठन है और मैं आजकल का नहीं, मैंने बार बार बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा. कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है. लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है. और हमारे ही सब भाई, हमारे ही सब बहनें, जिसको भी जो स्थान मिलता है वो हमारे ही है, हमारे बीच में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं. हमने भी काफी उनका काम किया है, उनको मदद की है और वो अब हम साथ में जुट के काम करने वाले हैं. तो ऐसा नहीं है. आज माननीय अमित भाई अहमदाबाद आ रहे हैं तो मुझे अभी सूचना मिली कि अमित भाई शाह जी का भी एयरपोर्ट पर स्वागत करना है. तो मैं 12:30 बजे एयरपोर्ट पर भी अमित भाई शाह जी को रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ. तो ये तो मेरी एक जिम्मेदारी है
पार्टी ने मुझे इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा जिम्मेदारी से बड़ा बनाया है, तो पार्टी को जरूरत हो, किसी को और जरूरत हो, समाज को जरूरत हो, कार्यकर्ताओं को जरूरत हो, या गुजरात के किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो, तो मेरे हिस्से में जो काम आता है, मैं जो किसी का कर सकता हूँ वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। सर, नायब मुख्यमंत्री पर स्वीकार सो सर, कोई आपने ये कहा कि मैं जब तक लोगों के दिल में हूँ तब तक कोई मुझे हटा नहीं सकता। देखिए मेरी बात सुनो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, पहले लोगों के हृदय में स्थान होना चाहिए। पार्टी का सिंबल भी होता है, प्रचार भी होता है, लेकिन लोगों का सम्मान वो हमेशा छोटे गांव का सरपंच हो या कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, प्रजा के हृदय में जब किसी का स्थान होता है तभी उसको सपोर्ट मिलता है। हम तो 182 को टिकट देते हैं, 182 को हम उम्मीदवार बनाते हैं। नगर पालिका कॉरपोरेशन में भी हजारों लोगों को हम टिकट देते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो सब तो नहीं जीत पाते। जितने में जितनी पक्ष की भूमिका रहती है, जितने नेताओं के आशीर्वाद रहते हैं, जितने पक्ष का सिद्धांत जुड़ा रहता है, इसी प्रकार लोगों का संबंध, कार्यकर्ताओं का संपर्क, मतदारों का संपर्क, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस विस्तार की जनता का उनका रिश्ता, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो सब मिलके कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वैसे कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने ये कहा है कि जब तक लोगों के हृदय में स्थान है, किसी भी व्यक्ति का, कोई धार्मिक नेता हो, वो कोई संत हो, स्वामी हो, तो फिर उसको उसके भक्तों के हृदय में उनका स्थान रहता है, तब तक वो बड़ा रहता है। इसी तरह कोई कंपनी की ब्रांड हो, तो ब्रांड की जब तक प्रेस्टीज रहती है तब तक वो काम चलता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी जो कोई भी कार्य करो, छोटे से छोटा कार्यकर हो या बड़े से बड़े नेता हो, प्रजा के हृदय में जिसका स्थान है, वो मैंने बोला है कि प्रजा के हृदय में स्थान रखना वो पहली बात है, और काम करके लोगों का प्रेम जीत के आदमी बड़ा हो सकता है। किसी को दूर रख के, किसी को बाजू में रख के, मतदार हो या कार्यकर हो या अपने विस्तार के लोग हो, उसको दूर रख के कोई नेता बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं मेहसाना का प्रतिनिधि हूँ, मेहसाना का 2 टर्म का विधायक हूँ, 4 टर्म कड़ी में विधायक रह चुका हूँ। तो मैंने ऐसा बोला है कि 6 टर्म मैं धारासभ्य MLA बना, तो कड़ी और मेहसाना की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। तो जिसने भी हमको सपोर्ट किया है उसका ऋण स्वीकार करना वो हमारा संस्कार है, ऐसी मैंने बात कही। देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, आप सबको मैं थोड़ा, लोग बोलते हैं कि मैं मीडिया फ्रेंडली हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे अकेले पर आप सब पूछ लो, दूसरे के लिए भी थोड़ा स्थान जगह रखो। बड़े नेता है, बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी है, उनसे भी थोड़ी जानकारी लो और आने वाले समय का इंतजार करो। सब अच्छा होगा, और पार्टी ने मुझे इतना काफी दिया है कि इसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता।